Good morning, students. Today I continue with our previous topic, Yogasanas principle. So start with physiological effects of Yogasanas in human body. Cultural poses. Cultural pose means आसनों की बात कर रहे हैं, Yogasanas. Cultural poses are fully capable of fulfilling these conditions. Number 1, constant supply of adequate nourishment to the endocrine glands and other tissues. Number 2, effective removal of waste products. Elements necessary for the nourishment of tissues are carried to them through blood. The supply of nourishment depends not only on the quality and quantity of food but also on the power of the digestion and absorption of the digestive system. अगर शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करेगा तभी खाना ठीक से पचेगा. In that way, the circulatory system and digestive systems are interconnected. Circulatory system और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. दिस सिस्टम कैन बी केप्ट इन अ डिसिप्लिन मैनर थ्रू कल्चरल पोज. और ये दोनों सिस्टम सही तरीके से काम करे इसके लिए योगासना की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. और अगर योगासना की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो ये दोनों की बात नहीं हो रही, सारे सिस्टम ठीक तरह से स्ट्रांगली काम करते हैं. The smooth muscles of our digestive tract need a gentle and automatic massage for proper functioning. When these abdominal muscles become strong and elastic, they can become more effective. और सिस्टम सही तरीके से काम करेगा तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे हेल्थ में पड़ेगा. आसनास लाइक भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्धमच्छेन्द्रासन, योग मुद्रा आसन etc. help to keep our digestive function normal by making the abdominal muscles strong and more elastic, keeping all the organs in their respective places and the removal of waste products properly. तो योगासनास की प्रैक्टिस से खाना ठीक से पचेगा तो हमें वैसे ही अच्छे शरीर की प्राप्ति होगी. Human health depends not only on the adequate supply of nourishment but also on the secretion of the endocrine glands. योगासनास के प्रैक्टिस से एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी सिक्रेशन अच्छे से सिक्रेशन होते हैं, सारे ग्लैंड्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और सही तरीके से फंक्शन करते हैं. Yogic exercise have been observed to the outstanding exercise for the endocrine glands function. ये देखा गया है कि योगासनास की प्रैक्टिस से आउटस्टैंडिंग इफेक्ट्स पड़ता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर. तो अभी हमने देखा कि योगासना की प्रैक्टिस करने से डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत अच्छा असर पड़ता है. ये प्रॉपर वे में और सही तरीके से फंक्शन करते हैं. अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट element of nourishment is oxygen. By practicing asana, we can keep our respiratory system in a well-organized condition. For proper breathing activity, the health of lungs and the respiratory muscle should be in a good conditions. बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसमें हम लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं. किस तरह से? ताड़ासन में पूरी लंग्स की स्ट्रेचिंग होती है ऊपर से नीचे की ओर. प्राउन पोजीशन में भुजंगासन, तिरेक भुजंगासन मीन्स लंग्स की साइड वेज से अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग होती है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है मीन्स लंग्स पूरे सही मात्रा में अपने अंदर ऑक्सीजन को लेता है. द प्रैक्टिस ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम हेल्प्स टू इम्प्रूव अवर लंग वॉल्यूम कैपेसिटी. लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना. तो आसन की प्रैक्टिस और प्राणायाम की प्रैक्टिस से ये वाली लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स पूरी सही मात्रा में अपने अंदर ऑक्सीजन लेता है. अब हम थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं नर्व्स कंडीशन की, जो कि पूरे तरह से स्पाइन से जुड़ा है, ग्लैंड से जुड़ा है, टिश्यूज से जुड़ा है. द थर्ड कंडीशन ऑफ द हेल्दी बॉडी is a healthy functioning of the nerve connection. All the organs and tissues are regulated by the nervous system. Mainly because of the nerve connection, every organs and tissues can perform their proper function.
Asanas are found to be capable of preserving the health of the brain and spinal cord. That means asanas have beneficial effects on autonomic as well as the peripheral nervous system, which spreads throughout the body. तो यहाँ तक हमने देखा कि योगासना की प्रैक्टिस से किस तरह से हमारे ग्लैंड्स, टिश्यूज़ और सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा असर पड़ता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि नर्व कनेक्शन भी सही तरीके से काम करते हैं। तो ये यहाँ तक था फिजियोलॉजिकल वे में किस तरह से योगासनों का शरीर पे असर पड़ता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू।